welcome to my channel. In our previous lectures, we have created a single perceptron with the user-defined inputs, the user-defined weights, and a bias, and then we simply apply a dot product एंड शो द आउटपुट ऑन। आज के लेक्चर्स के अंदर हम जो टास्क नंबर 2 है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि वही प्रोग्राम दोबारा हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हम सिग्माइड फंक्शन और जो हमारे पास स्टेप फंक्शन है वो हम अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास इफ़ वी सप्लाई सम इनपुट्स फीचर्स टू द परसेप्ट्रॉन विद अ पर्टिकुलर वेट्स एंड बायस वैल्यू, देन व्हाट विल बी द प्रिडिक्शंस ऑफ और न्यूरल नेटवर्क्स आर अ सिंगल परसेप्ट्रॉन। एक्चुअली इसको हम फीड फॉरवर्ड प्रोपिगेशन भी कहते हैं कि फीड फॉरवर्ड प्रोपिगेशन बेसिकली हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो अगर हम अपने टास्क को देख लें तो ये हमारा टास्क है जिसके अंदर इफ़ यू लुक एट दिस देयर आर 3 फीचर्स दिस टाइम, व्हाइल इन द लास्ट लेक्चर्स वी हैव कवर्ड जस्ट 2 फीचर्स। 3 फीचर्स हमारे पास, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3। देर आर 3 वेट्स. Each weights is for the single features, and then this is the summation functions, or here we are applied dot products of inputs and weights and biases added, and then this weighted sum is supplied to the activation functions, which will give us some predictions. Okay, so if we start, so for this we have to use some libraries, import libraries. We are going to simply use import numpy as np, and then again we have to define some user inputs, because we have 3 features, that is input. Simply I am writing here input 1, and that is or simply yes, I'm going to change this time. Inputs is equal to inputs हमारे पास हैं 1, 2 and 1.5. ओके, सो ये हमारे पास इसके इनपुट्स हैं। सिमिलरली अगर हम वेट्स को इसी तरह इस दफ़ा एक अरे की सूरत में ले लें, तो वेट्स हमारे पास हैं 0.5 and then 0.2 and then 0.5. The third one is, let's say, minus 0.5. okay, and similarly we are going to define the bias value, that is bias is equal to 2 this time. Okay, so the third step is calculated weighted sum, as we applied last time the dot product. So here how we will calculate the weighted sum, that is weighted sum is equal to np dot product. okay, let me run from here first. okay, dot product, and this is basically the inputs. okay let's first is okay, now inputs multiplied and weights, okay, weights, and then bias is added. okay, let's add the bias value, sorry, bias. okay, this is how the weighted sum is calculated, dot product of inputs and weights plus bias. Then here this time we are going to define a sigmoid functions. Simply a sigmoid functions is a functions. How we can use this, def sigmoid, the input will be, and then simply return 1 over 1 over 1 plus, sorry, 1 over 1 plus np dot
exponent into minus x or minus x. So this is our simply sigmoid functions. Okay, I simply run it. Okay, now we have defined inputs, weights and bias values. We are applied a dot products to calculate the weighted sum, and then I have declared sigmoid functions. For the time being, I'm going to lift the step function. Okay, now apply activation functions on the weighted sum. So here we are going to just simply how the weighted sum value will be passed to the activation functions. Okay, let me write it here. The sigmoid output, what will be the output of the sigmoid functions? Sigmoid and to what I'm going to pass the sigmoid is the weighted sum. Okay, this will be the sigmoid output. So for the display functions, just let me show. First I want to print inputs features, or what are the input features? Simply these are the inputs values. Okay, inputs. Okay, so let me run it. If I run this program, simply the input features will be displayed here, and processing it just continues. Wait for a while. Okay, these are the input features 1, 2 and 1.5. Okay, now I want to print the weights जो हर एक इनपुट फीचर्स के साथ वेट है उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं. द weights with the weights for the input features. ओके, वेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? द रिस्पेक्टिव weights values or weights. Okay, if we look at this if we look at this, the weights will be displayed here. So अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये हमारे पास inputs features की values हैं, और ये इसके लिए हमारे पास जो weights हमने डिफाइन किए वो हमारे पास weights हैं. ओके, उसके बाद हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं इसकी जो 22 की वैल्यू है कि हमारे पास 22 की वैल्यू क्या है? प्रिंट बाइस फॉर द नेटवर्क मॉडल इज, वो हमारे पास लेट्स सपोज मैं इधर इसको डिस्प्ले करवा लेता हूँ 22. सो अगर हम ये डिस्प्ले कर दें तो ये अब हमारे पास 22 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है. ओके, नाउ 22 की वैल्यू के बाद मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू. डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू print the dot product of inputs and weights plus bias. तो वो हमारे पास वैल्यूज़ की आ जाती है. the dot product is weighted sum. Okay, this will be now just to show the output. Now if you look at this, this is the bias of our network and this is the dot product value. Okay, after dot product value, now this dot product value is simply forward to the activation functions. If you look at the diagram, यहाँ पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई. अब ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हम कहाँ करते हैं? सिग्माइड फंक्शंस को फॉरवर्ड करते हैं जो कि हमें फाइनली क्या देगा? कोई प्रिडिक्शंस, कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करके देगा. ओके, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि फाइनल आउटपुट और
prediction using Sigmoid activation function. So this will be the final output. Okay. Sigmoid output is the Sigmoid output. Okay, so now if you look at this, this is basically the if you look at this is a Sigmoid output which is 1 point something. Sigmoid फंक्शंस के पास वैल्यूज चली जाती है तो वो हमारे पास आ जाती है. Sigmoid फंक्शंस की अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम देख लें तो ये मेरे पास सिग्माइड वैल्यू है. इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जी अगर कोई वैल्यू हमारे पास सिग्माइड वैल्यू की सिग्माइड जो फायर करता है या जो सिग्माइड आउटपुट हमें दे देता है, अगर वो माइनस के अंदर वैल्यू है दैट विल बी कन्वर्टेड टू ज़ीरो. और अगर हमारे पास पॉइंट्स के अंदर कोई वैल्यू आ रही है लेकिन माइनस नहीं है तो दैट्स विल बी कन्वर्टेड टू 1. सिग्माइड बेसिकली क्या है? सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन इज यूज्ड व्हेन द मॉडल इज प्रिडिक्टिंग प्रोबेबिलिटी. मींस अब इस केस के अंदर जो हमारी प्रिडिक्टेड आउटपुट होगी या हमारे पास वो 0 होगी या हमारे पास क्या होगी 1 होगी. सो इस केस के अंदर सिग्माइड ने मुझे 1 means this value will be actually consider as 1. ओके, सो ये तो हमारे पास था सिग्माइड फंक्शंस को यूज़ करने का मेथड कि हम सिग्माइड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, अब अगर मैंने स्टेप फंक्शंस को यूज़ करना है तो स्टेप फंक्शंस को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ? यहाँ पे डिफाइन स्टेप फंक्शंस. सिग्माइड के साथ साथ हम स्टेप फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं. अगेन मेरे पास जस्ट लाइक अ फंक्शन स्टेप फंक्शन, वो भी मेरे पास जस्ट कोई इनपुट एज अ पैरामीटर लेगा. सो मैं कहता हूँ कि रिटर्न रिटर्न 1 एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 एल्स 0. इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो 1 रिटर्न कर लो, अदरवाइज़ क्या कर लो, रिटर्न 0 कर लो. ओके, ये तो मेरे पास आ गया. अब इसको मैं जस्ट रन कर लेता हूँ. तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, एक और यही सेम स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू कॉपी एंड फाइनल आउटपुट और प्रिडिक्शन यूजिंग स्टेप फंक्शंस. तो यहाँ पे अब मैं क्या कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे मुझे फंक्शंस कॉल भी करना पड़ेगा. स्टेप आउटपुट इज इक्वल टू स्टेप फंक्शन इनटू वेटेड सम. ओके, सो यहाँ पे अब मैं क्या कर लेता हूँ, जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस सेल. ओके, here is step output. Okay, now I'm just going to start executions from the start cell. Okay, let's see now if we look at the output, this is basically the final output of prediction using sigmoid activation functions, final output or prediction using step functions. So ये हमारे पास क्या है, this is not sigmoid, rather that is a step function output. सो अब ये हमारे पास क्या आ गया, स्टेप फंक्शंस का आउटपुट आ गया. सो इसका मतलब ये है कि स्टेप फंक्शंस भी मोस्टली हमारे पास सिग्माइड की तरह ही काम करता है. सिग्माइड फंक्शंस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास प्रिडिक्शंस हमेशा क्या होगी, या ज़ीरो फॉर्म के अंदर, या प्रिडिक्शन या हमेशा हमारे पास ज़ीरो होगी या हमारे पास 1 होगी. सो इसी वजह से यहाँ पे सिग्माइड फंक्शंस के बारे में कहते हैं सिग्माइड फंक्शन इज़ यूज्ड व्हेन द मॉडल इज़ प्रिडिक्टिंग प्रोबेबिलिटी. अगर किसी जगह पे हमने जो प्रिडिक्शन हमारे पास आनी है वो 0 या 1 के फॉर्म में आनी है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं. एक्टिवेशन फंक्शंस के अंदर अगर आप लोग देख लें तो ये बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शंस हैं. इसको आप लोग खुद भी यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ई की जो वैल्यू है हमारे पास ये जनरली प्री डिफाइंड होती है 2.781, और ये हमारे पास जो माइनस एक्स है ये बेसिकली आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आती है ना वो आपके पास आती है. एक जनरल रूल मैं बता देता हूँ कि अगर डॉट प्रोडक्ट में आपके पास वैल्यू
0.5 से कम आ जाती है तो ये आपको ज़ीरो रिटर्न करके देगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी आ जाती है, मींस पॉजिटिव फॉर्म के अंदर आ जाती है, तो वो आपको क्या रिटर्न करके देगा, वो आपको 1 रिटर्न करके देगा। सो ये हमारे पास सिंपल कैलकुलेशंस थी सिग्माइड फंक्शंस की और स्टेप फंक्शंस की। अब हमने यहाँ पे जो सिग्माइड फंक्शंस को यहाँ पे हमने इंडिविजुअल कॉल किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा कमेंट करने लगा हूँ। मैं एक और फंक्शन बनाने लगा हूँ जहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट और सिग्माइड फंक्शंस मैं कंबाइंडली कॉल करूँगा। ओके, सिग्माइड फंक्शन मैंने डिफ़ाइन कर दिया, यहाँ पे मैंने स्टेप फंक्शंस को भी थोड़ा सा कमेंट कर रहा हूँ। ओके, सिग्माइड फंक्शंस के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक और फंक्शंस डिफाइन यहाँ पे कर रहा हूँ, डेफ सिंगल परसेप्ट्रॉन, और इसको मैं तीन चीज़ें एज अ पैरामीटर्स दूंगा। एक हमारे पास इनपुट्स, और एक हमारे पास वेट्स एंड देन सेकंड वन इज़ बायस। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सॉरी, इसके अंदर मैं दो काम बेसिकली कर रहा हूँ। एक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे या डॉट प्रोडक्ट या वेटेड सम भी आप लोग इसको कह सकते हैं, या हम डॉट प्रोडक्ट इसको कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू एन पी डॉट डॉट और इनपुट्स एंड वेट्स वेट्स प्लस बायस। एक मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट्स भी कॉल कर रहा हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पे एक काम और कर रहा हूँ, जो मेरे पास आउटपुट है, आउटपुट इज़ इक्वल टू सिग्माइड फंक्शंस भी मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, सिग्माइड। और सिग्माइड फंक्शंस को मैं क्या दे रहा हूँ, इज़ अ डॉट प्रोडक्ट, जो मेरे पास आउटपुट है डॉट प्रोडक्ट, ये मैंने इसको आउटपुट कर दिया। और पे मैं ऐसे कहता हूँ कि जी रिटर्न आउटपुट। अब मैं क्या कर लेता हूँ, देख लें, मैंने सिग्माइड फंक्शंस कॉल किया, मैंने डॉट प्रोडक्ट भी इस फंक्शंस के अंदर किया है, और उसके बाद मैं सिग्माइड फंक्शंस भी यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जहाँ पे मैं आउटपुट कर लेता हूँ वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फंक्शंस को कॉल कर लेता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ कि जी आउटपुट इज़ इक्वल टू, इसको मैं एक दफ़ा कॉल कर लूँ, सॉरी एग्जीक्यूट कर लूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ सिंगल परसेप्ट्रॉन, और इसको मैं दो चीज़ें दे रहा हूँ, जो मेरे पास इनपुट्स थी, इनपुट्स यूज़र इनपुट्स, और उसके बाद जो वेट्स थे जो हमने डिफ़ाइन किए थे, वेट्स, और एक मैं इसको दे रहा हूँ 22 की वैल्यू। सो अब यहाँ पे ये मुझे सिंपली क्या करेगा, मुझे आउटपुट रिटर्न करके देगा, और वो आउटपुट मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, चूँकि 22 अभी फ़िलहाल मेरे पास ये जो लास्ट स्टेप फंक्शन है ये मेरे पास कमेंट हो चुका है, और सिग्माइड भी मेरे पास अब ये आउटपुट मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास सिंपली क्या हो जाएगा, यस प्रिंट आउटपुट, लेकिन इसको ये मेरे पास अब सिंपली आ जाएगा एज अ आउटपुट। सो अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट से एग्जीक्यूट कर लूँ, रन कर लें, अब इस दफ़ा मेरे पास सिग्माइड फंक्शंस आ गया, सिंगल परसेप्ट्रॉन भी मैंने डिफ़ाइन कर दिया, उसके अंदर मैंने दो काम कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट और सिग्माइड फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ। ओके, सिग्माइड sigmoid, let me do it, sigmoid. Okay, so I write it. Okay, the final output, if you look at this, input features are the weights, the bias values, और जो मेरे पास आउटपुट्स आ रहे हैं, द डॉट प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, फाइनल आउटपुट ऑफ रिडक्शन यूजिंग सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन, सिग्माइड इज इक्वल टू दिस। ओके, सो आप लोगों ने अब देख लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट और सिग्माइड फंक्शंस मैं एक फंक्शंस के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ, मींस डॉट प्रोडक्ट भी मैंने कैलकुलेट कर लिया और सिग्माइड फंक्शंस भी मैंने यहाँ से कॉल कर लिया। ये बेसिकली सिंगल परसेप्ट्रॉन की एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं तीन पैरामीटर्स दे रहा हूँ, इनपुट्स, वेट एंड बायस। सो आप लोगों ने गाइस देख लिया कि यहाँ पे हमने तीन डिफरेंट काम परफॉर्म किए। एक
मैं सिग्माइड फंक्शन कैसे यूज़ कर सकता हूँ, स्टेप फंक्शंस कैसे यूज़ कर सकता हूँ, सिग्माइड और डॉट को मैं एक फंक्शंस के अंदर कैसे यूज़ कर सकता हूँ। सो होपफुली ये दो सिंपल लेक्चर्स कवर करने के बाद या कॉन्सेप्ट्स कवर करने के बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम रेंडमली इनपुट्स और वेट्स और बाइस की वैल्यू जनरेट करेंगे और फिर देखेंगे कि उन पे एक्टिवेशन फंक्शंस वगैरह हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और जो रेंडमली वैल्यू जनरेट होती है उनको हम कैसे देख सकते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।